دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محترم مقام حجیب صدر احترام حضرت العلامہ قاری سید شاہ مصطفیٰ حسین صاحب قبلہ برادر سجاد نشین آستان عالیہ شہر سوال گلسرم شریف و آستان عالیہ جلالیہ کرکندہ شریف مدیر غوث العظم اور آپ کی برادر اصغر سید شاہ مصطفیٰ حسینی صاحب، دیگر مسجد حاضہ کے امام و خطیب صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مداحان رسول کمار چنچولی کے معزز حضرات، گاؤں کے پنچ اور دیگر گاؤں کے سربراہان، حاضرین مجلس، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ کسی الیکشن کے کینویسنگ کی مجلس نہیں ہے، نہ کسی سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے سجائی اور سنواری گئی ہے، بلکہ آج کی رات جس کو شب میلاد کہا جاتا ہے اور کل صبح ہونے والی صبح کو صبح بہاراں کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگ اور عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ شکر کے تعلق سے قرآن عظیم کے اندر رب نے بڑی پیاری بات کہی، لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم ہمارا کھا پی کر پہن اوڑھ کر شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفرانی نعمت کرو گے تو جان لو میرا عذاب بڑا ہی سخت اور شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی مسلمانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اشرف جیسے عظیم شان خطاب سے ہمیں رات کو سرفراز فرمایا۔ چلیے خطبے کے آغاز میں قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، پھر اس کے فوری بعد حدیث پاک کوڈ کی ہے۔ خطاب سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ اور حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنے خطاب کو آگے بڑھانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں شکریہ، اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا صلی علیہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، محترم بزرگ اور عزیز دوستو، رب تبارک و تعالی مقدس کلام بلاغت نظام میں یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی بات، دو حصے بیان کیے گئے، دو جز بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ کہا گیا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا۔ نور کس کو کہا گیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو نور سے گردانا گیا ہے، نور کہا گیا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں کتاب مبین کہا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، ایک روشن کتاب آئی۔ کسی بھی تفسیر میں اٹھا کر پڑھ کر دیکھیے، تفسیر کشاف ہو، تفسیر بیضاء ہو، اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ہو، علامہ طاہر القادری صاحب کا عرفان القرآن ہو، اس آیت کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے۔ اس آیت میں نور سے مراد
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। मिट्टी दुनिया के हर चीज अभी कुरान बाकी है, मुमिन की सीने में अभी ईमान बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह। जिसने मुझसे मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। और बिलखुसूस आज की रात से रिलेटेड मैं हदीस पाक कुछ गुजार करता चलूं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर एक हदीस पाक में है, कुल्लु शैइन मिन नूरी, और हर चीज को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। लो कलम, अर्श, कुर्सी, हूर गिलमान, जन्नत, नूरी मखलूक, कुदसी मखलूक, इन तमाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब लौलक अब्दुल्ला के लाडले आमिना के लफ्ज़ जिगर गुम्मद खज़रा के नीचे आराम फरमाने वाले शहंशाह मक्की मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारका से तख्लीक फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम, मोहतरम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप हजरात की खिदमत आलिया में मुबारकबादियां पेश करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुशी से बार बार हो रहा। पहली मर्तबा आपके गांव में कुमार सिलसिले में आने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में हमने नमाज इशा अदा फरमाई और एक साथ के घर में अल्हम्दुलिल्लाह तनावले ताम का एहतमाम किया गया। फिर आपके गांव की मस्जिद देकर साहब किबला के साथ हम स्टेज पर पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम, स्टेज पर जो तशरीफ फरमा है वो मामूली शख्सियत नहीं है, आले रसूल औलाद अली। इस मौके पर मुझे आला हजरत याद आ रहे हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। कुल ला असलमु अलैहि अजरन इल्ला मुअद्दता बिल कुर्बा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु से अल्लाह कहलवा रहा है, लोगों से कह दीजिए मैं जो तबलीग इस्लाम का मिशन लेकर उठा हूँ, इसके सिले में, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, इतना चाहता हूँ कि आप मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें। अहलु बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत हजरत नूह इस्लाम के कश्ती के मानिंद है। जो अहले बैत की कश्ती पे सवार हो गया वो नजात पा गया, जो उससे दूर हो गया वो गरक हो गया, हलाक हो गया। अहले बैत की कश्ती को कश्ती नूह से ताबीर किया गया, तशबीह दी गई। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम, मोहतरम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, आप यहाँ तशरीफ फरमा है। आज की रात बड़ी सादतों वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली रात है। देखिए, रात को भी शिकायत नहीं रही कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात मेरे हिस्से में, मेरे दामन में क्यों नहीं तशरीफ लाए। दिन को भी ये शिकायत नहीं रही कि रिसालत माअ मेरे हिस्से में। उलमा इसकी बड़ी प्यारी तफसीर फरमा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त तशरीफ लाए दुनिया में, ऐसे वक्त में आपकी विलादत के पास हालत हुई, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। इसको हिंदी जबान में भौर का वक्त कहा जाता है। सहर के वक्त से थोड़ा हट करके गोया रात का इख्तिताम है, दिन का आगाज है। गोया के रहमत आलम से, रहमत आलम से और रात को भी हिस्सा मिला आपकी रहमत से, और दिन भी हिस्सा पा गए आपकी रहमत से। मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम, मोहतरम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाने से पहले 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, और हर नबी ये कहकर गए कि हमारे बाद एक नबी आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम और सरकार के दरमियान 570 साल का गैप पीरियड रहा। इस दरमियान को भी नबी नहीं तशरीफ लाए। ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिनका नाम इसमें गिरामी अहमद होगा। दुनिया वाले आपको, आसमान वाले आपको अहमद के नाम से पुकारते हैं, जिन्नात की मखलूक आपको महमूद के नाम से पुकारती है, हम आपको मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा तारिक कादरी साहब जो QTV के हवाले से खिताब फरमाते हैं, वो मोहम्मद की तफसीर इस तरह फरमाते हैं, मोहम्मद का माना वो है जिसकी हर जमान और हर मकान में तारीफ पर तारीफ की गई हो, तारीफ पर तारीफ की गई हो।
बलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह। मोहती से दकन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मीलाद नामे में तहरीर फरमाते हैं, लफ्ज मोहम्मद के हुरूफ भी 4, लफ्ज अल्लाह के भी हुरूफ 4। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नाम के ऊपर नुक्ता भी रखना गवारा नहीं फरमाया। फिर आगे चलकर बड़ी इरफानी बात फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के हुरूफ 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी हुरूफ 12। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम मोहतरम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, जरा अंदाजा लगाइए रब तबारक व तआला के मुक़द्दस नबी आगे चलकर इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर के तख्लीक के बाद कलम को पैदा फरमाया और कलम से कहा, ऐ कलम लिख। तो कलम अदबन एहतरामन अल्लाह से पूछता है, क्या लिखूं? तो अल्लाह से आवाज आती है, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख। ये मेरी और आपकी बात में अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मिलाद नामे में तहरीर फरमा रहे हैं। तो जो ही लफ्ज़ अल्लाह लिखता है कलम, तो फौरन कलम रुक जाता है, उस पर कपकपाहट तारी हो जाती है, शक हो जाता है, कलम फट जाता है। कलम फटकर कितने साल तक रहा? 700 साल पर उस पर कपकपाहट तारी रही, वो शक होकर के रहा। 700 साल गुजर जाने के बाद लफ्ज़ रहमान और लफ्ज़ रहीम को लिखा, तो अल्लाह से आवाज आई, आए कलम तू गवाह रहना, उम्मत मोहम्मदिया सल्लम से जो एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा उसके नाम आमाल में 700 नेकियां लिखी जाएंगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप अपना हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह से शुरू फरमाइए। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब लिखी है, इस किताब का नाम किताबुल उरूस है। उसमें आप इरशाद फरमाते हैं, जो जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसा करते हैं, घर में मीलाद पढ़ते हैं, मीलाद कहिए या मौलूद कहिए, पिछले के यहाँ बुजुर्गान दिन बड़े बुजुर्ग लोग तशरीफ फरमा है, हम आज के दौर में मीलाद कहते हैं, पहले जमाने के अंदर मौलूद कहते थे। मौलूद मीलाद दोनों एक ही, मौलूद और मीलाद यानी पैदाइश का जिक्र, जिसमें क्या होता है, इख्तियारात मुस्तफा बताए जाते हैं, मकाम मुस्तफा बताया जाता है, मिलाद मुस्तफा बयान की जाती है, वो नात की शक्ल में, वो नजर की शक्ल में, वो नसर की शक्ल में। उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, रात तमाम मिलाद पढ़ी जाती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम मोहतरम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, किताबुल उरूस के अंदर अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो जश्न मीलाद मनाते हैं, जो जश्न मीलाद मनाते हैं, उनको उनके ऊपर अल्लाह की बरकत नाजिल होती है, रहमत नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फख्र अता फरमाता है, उन्हें नियामतें अता फरमाता है, और कल क़यामत के दिन जश्न मीलाद मनाने वाले मोतियों का अमामा पहनकर, सब्ज़ लिबास पहनकर दाखिले जन्नत हो जाएंगे। देख लिया मुअज़्ज़ज़ सामान इकराम।